پائے جاتے ہیں، کیا اسلام کے اندر ذات پات کا کوئی کنسپٹ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب التمش صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ہاٹ ٹاپک کاسٹزم کی انڈین سوسائٹی پر ڈیبیٹ کے لیے ایک انٹلیکچوئل طبقے کے سامنے ایز اے اسلامک اسکالر مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ سر، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں ذات پات کو لے کر کیا نظریہ ہے، تو اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہماری مذہبی اور دستوری کتاب قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات ورس نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کو بڑے صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا تاکہ تمہاری شناخت اور پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی آخری ٹیچنگ میں اسی نظریے کو بیان کیا۔ حدیث ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی، کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک خاندان کی اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فضیلت کا کوئی معیار ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے، وہ صرف اور صرف خواہشی اور تقویٰ ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نہ ذات پات کا تصور ہے اور نہ اس بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں سارے لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ جناب اشرف صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کے اندر ذات پات نہیں ہے، پھر آپ یہ بتائیے یہ پٹھان، مغل، انصاری، سلمانی، قریشی یہ سب کیا ہے؟ سر، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، خواہ خان ہو، پٹھان ہو، سید ہو۔ جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہو اور آپ دیکھا ہوگا آپ نے کیا تھوڑی دور پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سیکٹر نمبر 1، سیکٹر نمبر 2، سیکٹر نمبر 3، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف لوگوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ خان پٹھان وغیرہ ہے۔ اب اس چیز کو ذات پات کو فخر کا، پراؤڈری کا، ڈسکریمنیشن کا یا ریسزم کا حصہ بنانا اسلام کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آڈینس، آپ نے اسلامک اسکالر کو سنا، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سناتن دھرم کے گرو پنڈت منوہر لال جی کے پاس۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر ہمیں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ ہندو دھرم میں ذات پات ہی نہیں بلکہ ذاتی بات بھی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی پستک منوسمرتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوؤں کو 4 جگہوں میں بانٹا گیا ہے، برہمن، چھتریہ، ویش، شودر، ان 4 ذاتیوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہم پنڈت جی سے پوچھنا چاہیے، پنڈت جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ सर्वप्रथम मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातनी को सनातन धर्म की सच्चाई समझाने के लिए इस खूबसूरत से मंच को आमंत्रित किया। जहाँ तक सर आपका प्रश्न है हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर, तो यकीनन है इसी आधार पर हिंदू समाज में एक खास समुदाय के साथ बहुत कुछ भेदभाव भी हुआ और आज भी हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है सर, हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन और धार्मिक पुस्तक है उनमें इस तरह का कोई भी मंत्र नहीं है और इनमें मानवता को बांटने की बात की गई हो। हाँ, दूसरे इस तरह के जो ग्रंथ हैं यानी मनुस्मृति वगैरह, उनमें इस तरह का जो समाज के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको मसाला मिल जाता है। آڈینس، جیسا کہ آپ نے پنڈت جی کو سنا، دونوں دھرم گروہوں نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا ہے کہ دھرم میں کسی بھی طرح کا ذاتی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ماہر لیکچرر مسٹر جناب عزت صاحب کے پاس۔ جناب عزت صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذات پات کا یہ نظام کب سے اور کیسے شروع ہوا؟ First of all, I would like to thank you for inviting me. دیکھیے سر، اگر ہم اوریجن آف کاسٹ سسٹم کی انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو کئی آرکیولوجسٹ یعنی آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر ذات پات کا تصور انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی ہڑپا تہذیب سے ہی رائج ہے۔
لیکن ہمیں اس کی کوئی مسدد تاریخ نہیں ملتی. ہمیں جو اس کی کوئی مسدد تاریخ ملتی ہے وہ ملتی ہے 1520 سے، جب آرینس نے انڈیا پر حملہ کیا. جب آرینس نے انڈیا پر حملہ کیا اور یہاں پر رہنے والے دراوڑ لوگوں سے جنگ کی، اور یہ جنگ تقریباً 400 سال تک چلی. اور جب آرینس اس جنگ کے اندر فتح یاب ہو گئے تو آرینس نے اس ملک کے ریلیجس اور ایجوکیشن سسٹم اور ملٹری، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو 3 ورگوں میں بانٹ دیا. جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے وہ برہمن، دوسرے قسم کے لوگ چھتریا، تیسری قسم کے لوگوں کو ویشیہ کہا جانے لگا، اور جو چوتھی قسم کے لوگ تھے یعنی جو یہاں کے نیٹو مقامی لوگ تھے ان کو شودر بنا ڈالا. اور کئی ہسٹورین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرینس نے خود کو برہمن اور دوسرے قسم کے لوگ یعنی جو اس جنگ کے اندر جنہوں نے آرینس کی مدد کی تھی ان کو چھتریا، اور تیسرے قسم کے لوگ جو جنہوں نے آرینس کی نہ مدد کی لیکن وہ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار رہے ان کو ویشیہ بنا دیا. اور جنہوں نے اس جنگ کے اندر آرینس کے دانت کھٹے کر رکھے تھے ان کو انہوں نے شودر بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ انٹچبل لوگ ہیں، ان کو چھوا نہ جائے بلکہ یہ اچھوت لوگ ہیں. اور یہی 4 بند آج ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں اور 1520 سے لے کر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آڈینس، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ہسٹری کے ماہر لیکچرر نے بتایا کہ یہ ذات پات کا نظام آج سے نہیں بلکہ پراچین کال سے چلا آ رہا ہے، لیکن دھارمک گرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پنڈت جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے دھرم کے اندر ذات پات نہیں ہے، تو پھر یہ برہمن، چھتریہ، ویشیہ، شودر یہ سب کیا ہے؟ سر یہ سب ذات تھوڑی ہے، یہ سب پرکار ہے. جس طرح ہم لوگ آم کھاتے ہیں، اب آم کئی پرکار کے ہوتے ہیں، کوئی دشہری ہوتا ہے، کوئی کلمی ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے سب آم، لیکن سب کے سواد الگ الگ ہے. ایسے ہی ہمارے گیتا میں بتایا گیا کہ منش کیسا ہوتا ہے. منش برہمن پرکار کا ہوتا ہے. منش کیسا ہوتا ہے؟ منش ویش پرکار کا ہوتا ہے. منش کیسا ہوتا ہے؟ منش شودر پرکار کا ہوتا ہے. تو سر یہ سب پرکار ہے، ذات نہیں ہے. ذات کیا ہے ہماری؟ ذات ہماری ہے منش ذاتی کے، ہم منش ذاتی کو ماننے والے ہیں. اور سر یہ میری بات نہیں ہے، یہ ویدوں کا وچن ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا. رگوید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 90 منتر نمبر 12 میں کہا گیا ہے، براہمن شروع سے باہو رجن نکتا اوہ درد ویشیہ تک براہمن شروع کا جاریہ تھا. کہ براہمن جو ہے یہ بھگوان کا مکھ ہے، اور شودر جو ہے یہ بھگوان کی چرن ہے، اور چھتری بھگوان کی بھجا ہے، اور ویش بھگوان کی جھنڈا ادھر ہے. تو براہمن بھگوان کا مکھ ہے اور ویش بھگوان کی چرن ہے. تو سبھی جب بھگوان کے مکھ اور چرن ہے تو بھگوان کے پتا ہوئے، جب بھگوان کے پتا ہوئے تو پھر یہ سب آپ بھائی بھائی ہوئے، تو پھر بھاؤ کیسا؟ پنڈت جی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذات پات نہیں بلکہ یہ پرکار ہے، اسی پرکار کا نام ہی تو ذاتی واد ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. آڈینس، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کے ہمارے سماجی کارکن مسٹر ماس صاحب کے پاس. مسٹر ماس صاحب، آپ یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے دھارمک گروؤں کو بھی سنا، ہسٹری کے ماہر لیکچرر کو بھی سنا، دھارمک گروؤں کا کہنا یہ ہے کہ دھرم میں ذاتی واد نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ذاتی واد ہے، ذات پات بھی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، سماج میں ذات پات کا کانسیپٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو مسٹر التمش صاحب، میں آپ کا بڑا آبھاری اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم اور سنویدنشیل موضوع یعنی ذات پات پر بات چیت اور گفتگو کرنے کے لیے انوائٹ کیا. سر، جہاں تک بات ہے ہندوستان کے اندر ذات پات اور اونچ نیچ کی، تو آج اس سماج کے اندر ذات پات کو لے کر لوگ کافی سیریس ہیں. میں مسلم سماج کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، اسی طرح میں ہندو سماج کے لوگوں سے بھی ملا ہوں. ان سے مل کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ذات پات کا لوگوں پر بڑا اثر ہے اور سماج اس سے بڑا متاثر ہے. اس ذات پات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان عداوتیں، نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہو رہی تھی، نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی تھی. اور جو سماج کے اندر جو الفت، محبت، تعلق اور بھائی چارے کی جو مقصود و مطلوب ہے وہ اس ذات پات کی وجہ سے مفقود اور ختم ہو چکی ہے.
जहाँ तक मेरे नजरिए की बात है तो सर मैं कहना चाहूँगा कि जात पात का निज़ाम समाज और लोगों के दरमियान से बिल्कुल खत्म होना चाहिए और आपस में भाईचारगी, उखुवत और मुसावात की हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुकू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राजी हो तो फिर बिरादरी बात आड़े क्यों आती है? सर, आपका ये ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझे नहीं। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसाला दरअसल समाजी और इरशादी मसाला है। और सर, हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने हममिजाज को तलाश करता है। तो सर, यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ ये चीजें और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीजें होती है। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला क्योंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर है उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अब अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसके हमपाला नहीं है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ज़हनी हमआहंगी ना होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने ये कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस रहे हैं कि ये मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है, फिर आपकी मजहबी किताबों में क्यों जगह दी? सर, दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक हैं। कुरान हदीस के हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तज़किरा नहीं मिलेगा। रही बात उन फिक़ही किताबों की जहाँ ये तज़किरा मौजूद है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है, जो कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियां बताता हूं जिनमें जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी सुनील का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मालूम था सर, आप एक विषय जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं, कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर, मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेजी मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगे। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी जो वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं निचले स्तर के जो ग्रंथ है, मनुस्मृति वगैरह हो या भगवद गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ है, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वेद के वेदांत के खिलाफ, तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर
इसको हम नकार देंगे, आप 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर आपस में मैंने ये कहा है, मैंने मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और उन श्लोकों को, मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं, तमाम सनातनों की आवाज है। लेकिन पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निजाम है, मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजद साहब के पास। जनाब अजद साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तारीख में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, पंडित जी का एक क्लेम कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। और अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि मनुस्मृति को ब्रिटिशर ने चेंज कराया था, क्या इसके अलावा किसी भी किताब के अंदर, हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का तस्वर नहीं पाया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेदा, मैं किसी स्मृति की बात नहीं करता बल्कि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। यजुर्वेदा अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30, वेद के लिए ब्राह्मण, हुकूमत के लिए क्षत्रिय, कारोबार के लिए वैश्य और दुख उठाने के लिए शूद्र पैदा किया है। और इसी तरह विष्णु स्मृति वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, क्रिमिनल एंड सिनर विल बी बॉर्न एज अ लो कास्ट पीपल, यानी मुश्रिकीन और गुनाहगार छोटी जात में पैदा किए जाएंगे। और इसी तरह विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 104 में ये लिखा हुआ है, इफ a low caste intentionally touch a high caste person then he is to be put to death, यानी अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाले को जानबूझकर छू भी लेता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक मिनट सर, तो ये कहना कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऑडियंस, जैसा कि हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि जात पात का निजाम आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे समाजी सेवक मिस्टर माज साहब के पास। मिस्टर माज साहब, आप ये बताइए कि जात पात को लेकर आजकल समाज में क्या चल रहा है? क्या समाज इस जात पात के निजाम से जूझ रहा है? किस कदर इस जात पात के निजाम से करा रहा है और सब कुछ क्या चल रहा है, जरा कुछ बताइए। सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमश साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मजहबी किताबों के अंदर क्या है। मैं इस्लाम और सनातन दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन समाज के अंदर क्या हो रहा है जात पात को लेकर, ये मैं आपके सामने रखता हूं। यकीनन आप जाने कि आज जो ऊंचे तबकात के लोग हैं वो नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इसकी चंद रिपोर्ट मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त सन 2022 में राजस्थान के अंदर एक टीचर ने एक दलित स्टूडेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला कि उस टीचर के गिलास से उस स्टूडेंट ने पानी पी लिया था। इसी तरह से राजस्थान ही के जोधपुर जिले के एक गांव नीलकंठ में एक शादीशुदा जोड़े को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कड़ाना कस्बे में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर सवार होने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस वजह से नहीं कि वो सीआरपीएफ का जवान था, बल्कि इस वजह से कि वो दलित समाज से और छोटे तबके से ताल्लुक रखता था। इसी तरह से गुजरात के महसाना गांव में क्या हुआ उसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश का वाकया, लखीमपुरी खीरी का वाकया, और सर हिंदुस्तान के अंदर नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, ये रिपोर्ट बयान की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने
कि हर 18 मिनट के अंदर एक दलित मर्द के खिलाफ जुर्म किया जाता है और हर दिन 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जाता है और हर दिन 11 दलितों को मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले के एक कॉलोनी है जिसके रास्ते के बीचों बीच एक दीवार खड़ी है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक अपर कास्ट जिससे शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको अंसारी कहते हैं। और वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के बड़ा हंगामा है। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से वेबसाइट पर मशहूर गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, फिर तब कहाँ से आ रहा है? सर 2 चीजें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेक्स्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। There is a gulf of difference between Islamic text and practice. दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। आप देखें कि इस्लामिक टेक्स्ट में जात पात का तस्करा नहीं मिलता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये चीजें हैं मुसलमानों में, और वजह उसकी ये है कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान में हजारों बरस से दूसरी कम्युनिटी के साथ रहते आ रही है, और जाहिर है कि जब 2 कम्युनिटी के साथ रहती है तो जहां खूबियां एक दूसरे में मुंतकिल होती है, साथ में कुछ खराबियां भी मुंतकिल होती है। ठीक इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी से कुछ खामियां भी, कुछ खराबियां भी मुंतकिल होकर आई है। उसी में से ये जात पात है, वरना असलन ये मुसलमानों में नहीं थी। जनाब अशरफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर जात पात नहीं है, प्रैक्टिस में है। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, ऑडियंस कहा ही जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मुसलमानों के यहाँ टेक्स्ट की हैसियत रखती है। और प्रोफेट मोहम्मद ने अपने एक पब्लिक लेक्चर में कहा था, अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ कुरैश के लिए है, हाकिम कुरैश बन सकते, कुरैश ही बन सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद अपनी बिरादरी को और अपनी जात को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं अभी एक उसूल मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ कि किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ व सवाब को समझना जरूरी है। ठीक इसी तरह से ये हदीस जिसको आपने कोट किया है, उसका भी एक पस मंजर है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। सर देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना अल-अइम्मतु मिन कुरैश, यानी जो साहिब हुकूमत होंगे, जो हुकूमत के मुस्तहिक होंगे, वो कुरैशी कबीले के लोग होंगे। इस हदीस का भी एक पसमंजर है। वो पसमंजर ये है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तशबीह दी है, और उस तशबीह का मकसद ये है कि उस जमाने के अंदर आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहना कि हुकूमत के मुस्तहिक वो होंगे जो कुरैशी होंगे, इसका मतलब ये है कि वो खूबियां जो कुरैश के लोगों में थी, वो खूबियां अगर उस आदमी के अंदर हो तो वो आदमी उस हुकूमत का मुस्तहिक होगा। इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है। यही वजह है कि आप देखें, खलीफा राशिदीन का जमाना हो या बनु उमय्या का जमाना हो या बनु अब्बासिया का जमाना हो, वहां पर तो ये कुरैशी खलीफा नजर आते हैं। उसके बाद का जमाना आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया, जिसके इस्लामी हुकूमत होने पर तमाम उलमा का इत्तफाक है, लेकिन उस हुकूमत में कभी इस बात का इंतजाम नहीं किया गया कि जो खलीफा हो कुरैशी हो। इससे बात मालूम होती है इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है, कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है, इस पर अमल करना जरूरी हो। जनाब अशरफ साहब, मैं आपको अभी दोबारा आऊंगा। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने समाजी कारकुन को सुना था, समाजी कारकुन का कहना यह है कि हर एक दिन के अंदर 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। हर 18 मिनट में एक दलित पर कोई न कोई अत्याचार हो रहा है। अब चाहे वो राजस्थान के अंदर दलित बच्चे को मार देने का मसला हो, या दलित औरतों के साथ रेप का मसला हो, या किसी दलित पर अत्याचार का मसला हो, जब आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए सर, इस वक्त भारत में जात पात और मंदिरों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सच ये है कि सनातन धर्म बहुत ही प्रगतिशील धर्म है और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जात पात नहीं मानता, और ना ही मंदिरों में गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जाती है। मिस्टर मुआज साहब ने जो दलित अत्याचार पर बात कही है, वो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि सनातन धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है। सर, सनातन धर्म दलित भाइयों को न केवल मंदिरों में जाने की अनुमति देता है, बल्कि कोई दलित अगर पुजारी बनने में सक्षम है तो उसको पुजारी बनने की अनुमति देता है। इसी तरह सर
कार्यालय, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी जातिवाद नहीं पाया जाता। बस मीडिया को क्या है, मसाला चाहिए ताकि वो अपने प्रचार कर सके। सर मैं आपके साथ एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। तिरुपति मंदिर में 500 गरीब पुजारी बने और ये सभी हिंदू है और पुजारी बनने के विभिन्न संस्कारों की परीक्षाओं को पास करके पुजारी बने हैं। ये सभी तिरुपति मंदिर में विभिन्न पूजा कर्म कराएंगे और ये सभी अब ब्राह्मण वर्ग में है। हाँ, संविधान के हिसाब से SC ST हैं, मायावती के हिसाब से दलित हैं और अम्बेडकर वादियों के हिसाब से ये शूद्र है। तो सर इसमें हमारा क्या कसूर है? अब लोगों को भी राजनीति चमकाना है, हम शुरू नहीं करते सर। मिस्टर मास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप समाज में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आप ये बताइए कि आपके मन में समाज में इस पाई जाने वाली बीमारी को खत्म करने के लिए कोई समाधान है? देखिए सर, जात पात को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक इस्लाह। और सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा? तो ये आएगा एजुकेशन यानी तालीम से, क्योंकि जब समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो इस बात को जानेंगे कि जात पात कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से एक शख्स को दूसरे शख्स पर बढ़तरी हासिल हो, एक शख्स को दूसरे शख्स पर फजीलत दी जा सके। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी सूरत ये भी हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है, उनको जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत और भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए। इस ताल्लुक से हमें दूसरे ममालिक को पेश नजर रखना होगा और रखना चाहिए कि वहाँ जमीनी सूरत हाल ये है कि वो जात-पात जैसी चीजों को कोई बढ़ावा और कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो सर, बल्कि वो अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को मसरूफ और मशगूल रखते हैं। ऑडियंस, हमारे सामाजिक कारकुन ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज से अगर इस बीमारी को खत्म करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब बदर साहब के पास। जनाब बदर साहब, हम आपसे ये मालूम करना चाहेंगे, क्या समाज को इस दलदल से निकालने के लिए फिलहाल या इससे पहले कितनी तंजीमें या कितने आंदोलन वजूद में आए और वो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए सर, कास्ट के खिलाफ तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें आई और आज भी आ रही हैं। अगर हम बात करें सबसे पहली तहरीक की, तो सबसे पहली तहरीक थी 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज्म की तहरीक, और इसी तरह इसी सदी के अंदर एक बड़ी तहरीक आई जैनिज्म की तहरीक, और फिर 8वीं सदी के अंदर भक्ति मूवमेंट और 15वीं सदी के अंदर सिखिज्म की तहरीक आई। हालांकि इन तहरीकों ने आज मजहब का जामा ओढ़ लिया है, लेकिन इनका असल मकसद ब्राह्मणिज्म और कास्टिज्म को हटाना ही था। अगर हम पिछली कुछ सदियों की बात करें तो दलित मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। एक ऐसी तहरीक थी जो इन तहरीकों में हिमालय तहरीक की हैसियत रखती थी। और इसी तरह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को देख लीजिए आप, तो ये कुछ तहरीकें हैं जो तारीख के अंदर आई और अब भी नई नई तहरीकें आ रही है, क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़ी सी अकल रखता हो वो जान सकता है कि जात पात ने इंसान को और इंसानियत को जिस कदर तकलीफ दी है, इस कदर दुख और दर्द दिया है, किसी चीज ने नहीं दिया। चाहे वो पेशवाओं द्वारा किया गया लोगों पर जुल्म हो, या दलित औरतों में लगाया गया ब्रेस्ट टैक्स हो, या कोई और भी चीज हो, या दलितों को एजुकेशन से महरूम करना हो। असल कहने का मकसद ये है कि जात पात ने इंसान को आज तक दुख दर्द ही दिया है। हमें जहाँ तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए। थैंक यू सर। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे सामाजिक धार्मिक गुरु हों या हमारे सामाजिक कारकुन हों या हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर हों, ये सभी इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाज से इस जात पात को निकालना चाहिए, जात पात की इस बीमारी को खत्म करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। हम सबको चाहिए कि हम लोग ये सब कदम उठाएं कि समाज इन बीमारियों से निकलकर हर एक अपने समाजी और इंसानी हुकूक के साथ जिंदगी गुजारे और हर एक को उसका हक मिल जाए। यहीं पर आज का हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं।